नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट तक सड़क के रास्ते जाने वाले इच्छुक लोगों की लंबे समय की मांग आज पूरी हो गई है। प्रशासन के अंडमान लोक निर्माण विभाग ने 2.5 साल से अधिक की अवधि में इस सड़क का निर्माण किया। इस सड़क को बनाने में 26 करोड़ 73 लाख 23 हजार से अधिक की लागत आई है। इस सड़क की कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर है। 21 जुलाई 2022 में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो इस महीने की 25 तारीख को पूरा हुआ। इस कार्य का निष्पादन अंडमान लोक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण प्रभाग द्वारा किया गया। इस बहुप्रतीक्षित सड़क को आज लोगों की सेवा के लिए खोल दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव अर्जुन शर्मा, एपीडब्ल्यूडी की सचिव पूर्वा गर्ग, नागरिक आपूर्ति सचिव, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और पीआरआई के सदस्यों की मौजूदगी में इस नवनिर्मित सड़क को रिबन काट कर पर्यटकों और आगंतुकों के लिए खोला। थोड़ा आगे चल के गाड़ी सैलिएंट फीचर्स ये आपका वो है चुना भुट्टा से हाँ यहीं पे सर। समुद्र से सटे निर्मित इस सड़क की खूबसूरती देखती ही बनती है। मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनी यह सड़क आने वाले दिनों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस सड़क के किनारे ज़रूरत के आधार पर रिटेनिंग वॉल और कलवर्ट बनाए गए हैं। नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट पर समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने मुख्य सचिव और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए इस सड़क के निर्माण के संबंध में अपनी बात रखी। It's indeed a moment of immense pride and privilege, making the completion of the project that significantly enhances connectivity and supports the growth of tourism and local livelihood in this region. North Bay Beach stands as a crown of jewels in our islands, drawing tourists from across the country and abroad, renowned for the vibrant activities such as scuba diving, sea walking, snorkeling and coral reef exploration. North Bay holds a special place in our tourism landscape. Our access to this destination has largely relied on sea routes, often disrupted by rough weather, impacting visitors' experience and local livelihoods. Recognizing the need for more reliable connectivity, the idea of constructing the coastal road
safeguarded with sea walls and shore protection measures, was envisioned and approved with an administrative and expenditure sanction of 27 crores. And through the unwavering dedication of our team and contractors, we are proud to see this project successfully completed. Despite challenges posed by cyclonic weather and unforeseen geotechnical conditions, I am pleased to inform you that this project has been completed at a cost of 26.68 crores, delivering high standards of quality and durability. Some key features of this project is 5.5 kilometer long, 5.5 meter wide, RCC retaining walls, box culverts, gabion walls, RCC sea walls, provision of drainage system, road marking and road fixtures and enhanced traffic safety. Finally, I take the opportunity to extend my sincere gratitude to Team RCD, especially Mr. Subbaraj, Executive Engineer under whose leadership the project has been initiated and executed. Proprietor of our executing agency, Mr. Chandrasekhar ji, President, Andaman Nicobar Chamber of Commerce, who has done an excellent job for the successful completion of this vital project. Let us together strive and maintain nurture this vital link, ensuring that the development, while preserving the natural beauty and ecological balance of our island, continue to advance hand in hand for the benefit of the present and future generation. द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने सड़क के निर्माण कार्य के पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी से आग्रह किया कि इसे संभाल कर और सहज कर रखें। कोई भी काम जब पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। फाउंडेशन लेइंग तो बहुत ज़्यादा होता है, पर समय रहते अगर कोई काम पूरा हो जाए और उसके लिए फीता काटने को मौका मिले तो आपको अंदर से खुशी होती है कि सरकार में कोई काम अगर शुरू हुआ तो उसको पूरा भी किया गया। तो इसके लिए मैं जो पीडब्ल्यूडी की हमारी जो टीम है लोकल यहाँ पर, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरह का काम जो यहाँ हुआ है, अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था तो अपनी सेक्रेटरी मैडम से भी बात में ये कर रहा था और ये कह रहा था कि इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जो है ये जो पूरी ड्राइव है हमारी वहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर, और उसके पहले का 1.5 किलोमीटर और अगर मान लें 7 किलोमीटर का, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह का आपको कहीं जो है देखने को मिलेगा। समंदर के साथ आप चल रहे हैं जिस तरीके से, पर ये जब काम होता है इस तरह का तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत हम लोगों की होती है कि इसको हम किस तरह से सहेज कर रखें, किस तरह से हम मेंटेन करके रखें। कागज़ पे तो हमने लिख दिया है कि 5 साल तक मेंटेनेंस का काम इनके पास है, पर आप और हम सभी जानते हैं कि सिर्फ लिखने से नहीं होता है, वाकई उसमें जो है ज़्यादा मेहनत होती है। और उसके लिए चाहे पंचायत हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है ये कि ये सही तरीके से बची रहे। ये जो धरोहर हमारी है, सड़क जो आज बन चुकी है, उसको हम लोग अच्छे से सहेजें, अच्छे से और बढ़िया डिज़ाइन करें और बढ़िया प्लान करें। बैठने की जगह कितनी अच्छी हो सकती है। हमारे पहले जो यहाँ पर मुख्य सचिव महोदय थे, उन्होंने काफ़ी इसमें सजेशंस दिए हुए हैं, और मेरा अनुरोध ये होगा CAPWD जी से कि आप उसको कागज़ पे ला करके और यहाँ पर सही तरीके से देखें, समझें, डिज़ाइन करें। कई एजेंसीज़ हैं जिनके साथ हम लोगों का MOU है, उन लोगों ने अपने कुछ सजेशंस यहाँ के लिए भी दिए हुए हैं। आपको एक सड़क दे दी गई है, लेकिन उस सड़क से आप कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं बिना सड़क को बर्बाद किए हुए, ये पूरी तरह से लोकल कम्युनिटी पर निर्भर करता है। आपके पास सबसे मुश्किल काम जो होता है कहीं पहुंचना, अब यहाँ पहुंचना तो आसान हो गया है। अब ये ना हो कि पता चला कि रोड सिर्फ आधी बची, क्योंकि आधी पे तो सिर्फ पार्किंग हो रखी है,
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सब लोगों के पास गाड़ियाँ हो गई है तो पता लगेगा कि सड़क जो है उसकी आधी सड़क तो हमने पार्किंग के लिए लगा दी है। और पार्किंग किस साइड लगाई है हमने, जिधर समंदर है। तो यानी कि जो हम व्यू आज देख रहे हैं, क्योंकि आज तो कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन महीने भर, 2 महीने भर, साल भर के बाद लोग यहाँ आएंगे, लोग गाड़ियाँ लेकर आएंगे उस तरह से यहाँ पर, तो ये देखने को मिलने की गुंजाइश ज़्यादा बन जाती है, जो सही नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि एक हॉलिस्टिक तरीके से आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ मिल करके PWD इस चीज़ को उठा सकता है, और जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें लीड ले सकता है कि आप एक बढ़िया तरीके से पूरे जगह का आप एक प्लान बनाएं कि इसमें कहाँ क्या होना चाहिए, और जिससे कि अगर कोई पर्यटक आए तो उसको पूरी तरह से जो है लगे कि वो आधा दिन यहाँ गुजार सकता है। सिर्फ पर्यटक का आना ज़रूरी नहीं है, उसका समय गुजारना ज़रूरी है अगर पर्यटन के इकोनॉमी से आपको कुछ फ़ायदा उठाना है तो, क्योंकि वो जितना समय गुजारेगा उसको उतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे ईटरीज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को खाने पीने की जगह ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। वो एक अलग प्लानिंग है। तो आपको बहुत सारी जो टॉयलेट्स आपके हैं उसको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो काम पूरा हुआ है ये अभी आधा है एक तरीके से। अगर इस इलाके का पूरा अगर आप कह सकते हैं उद्धार होना है उस तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे तैयारी करने की ज़रूरत है। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हर क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। तो मैं जो हमारे DC साउथ अंडमान हैं वो सचिव भी हैं ग्रामीण विकास के, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोकल जो ऐसे चीज़ हैं उनके साथ मिल करके एक अच्छी प्लानिंग करें इस चीज़ को लेकर के कि खान पान की वस्तुएं जो है उसको कैसे आप यहाँ पर पर्यटकों को अच्छे तरीके से हाइजीनिक तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं। ये सरकार में इस तरह के काम काफ़ी हो रहे हैं। आप देखेंगे मरीन का भी उधर आपका काम चल रहा है, चाथम के उधर। तो काम होते हैं, समय पे काम पूरा हो गया, ये आप लोगों का भी इसमें सहयोग रहा होगा, और ये हम लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है। और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे क्षेत्र का, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कि आपके श्री विजयपुरम जो आपका बंदरगाह है, हार्बर है, उसका आप कह सकते हैं कि ये माउथ है आपका ये। तो यहाँ जो भी देखेगा कि यहाँ इतनी अच्छी चीज़ें अगर उनको दिखती है बाहर से, सजावटी चीज़ें जो पर्यटक स्थल जितने भी होते हैं पर्यटन के, वहाँ पे दिख जाता है कि ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उस ढंग के काम आपको करने की ज़रूरत पड़ती है कि उसको और बेहतर दिखा सकें। आपका जो लाइट हाउस है यहाँ पे, नॉर्थ बे लाइट हाउस, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि आपके पास जो 20 रुपये का नोट होता है ना, उस पर ये लाइट हाउस का फ़ोटो है। तो ये आपको प्राइड इस पे आना चाहिए कि हमारे इलाके का जो एक स्ट्रक्चर है वो देश के लिए जो है, देश के लिए सबके पास उसकी जानकारी पहुंचती है, क्योंकि वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। पर उसको और बेहतर करना और अच्छा करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। आपके पास यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का काफ़ी काम होता है, लोग अबरडीन से यहाँ आते हैं, पर उसको और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये सब भी हमें सोचने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहले जो आपके पंचायत है उनको बहुत बहुत बधाई। आपके पास एक नई व्यवस्था आई है और इसको आप अपने समय, अपने से आगे आने वाले समय में इसको कैसे अच्छा बनाए रखा जाए, इसके लिए आपको ही सोचना होगा। आप लोग ही इस पे मेहनत करेंगे, बताएंगे, क्योंकि विभाग उस पे आपको हर तरह का असिस्टेंस देगा और हर तरह से आपको ये बताएगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं।
पर आपको आइडियाज़ नए नए, आपको ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ से जो रोड नया बना है उसकी बात ना सोचें, हम जो बैम्बू फ्लैट जहाँ से आपका जेट्टी शुरू होता है वहाँ से यहाँ तक की बात सोचें, क्योंकि ये कोई अलग नहीं है बल्कि उससे जुड़ा हुआ है। कोई पर्यटक आएगा तो वो पूरे रास्ते पे आएगा, तो आपको अगर प्लानिंग करनी है, कुछ सोचना है, तो वो पूरे इलाके का कैसे इसको और बेहतर तरीके से हम लोग और बढ़िया बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इस पर थोड़ा काम अगर करें जल्दी तो एक और बढ़िया चीज़ लोगों को मिल सकती है। मैंने हमारे जो स्कूल एजुकेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसको हमने कहा है कि हर महीने कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ करवा दो हर जगह। तो उसमें से मैं ये भी उनको अभी रिक्वेस्ट करूँगा आज लौटने के बाद कि यहाँ से बम्बू फ्लैट जेट्टी की एक दौड़ तो बनती है सुबह में, और जितने लोग इस तरह से आएंगे देखेंगे उससे और जगह के बारे में प्रचार प्रसार होगा, लोग आना चाहेंगे, समझेंगे, नए आइडियाज़ भी आएंगे कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें इस ढंग से करना चाहिए। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट चंद्रशेखर, और ये जो चूना बट्टा टू नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट का जो 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस का रोड है, ये रोड का भी कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी ने किया है। इसको एक रिकॉर्ड समय के अंतर्गत में कंप्लीट किया गया विथ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, बहुत ही रिच स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, विथ 5 years मेंटेनेंस के हिसाब से। 5 years मेंटेनेंस भी ये कॉन्ट्रैक्टर के दायरे में आता है। इसमें कोई भी रिपेयर आएगा 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्चे पे इसको मेंटेन करेगा।
दूसरा ये रोड बनने से यहाँ का इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी ये नॉर्थ बे आइलैंड जो है एक पोर्ट ब्लेयर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें हम उम्मीद करता है कि इसको थोड़ा सा और ये एरिया को डेवलप करके इसमें थोड़ा सा टॉयलेट्स का, पे एंड यूज़ टॉयलेट्स का और कुछ यूटिलिटीज़ का, कुछ पार्क को इधर डेवलप करने से एक काफ़ी अच्छा लोकेशन बन सकता है। आने वाले वर्षों में यहाँ में टूरिस्ट का बहुत अच्छा फ्लो हो सकता है। अंडमान का पूरा इकोनॉमी आपको पता ही है कि जैसे कि टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है हम लोग। इसके अलावा हमारे पास में कोई इंडस्ट्री या और कोई एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो एट प्रेजेंट हम उम्मीद करते हैं कि एवरेज यहाँ 2000 टूरिस्ट आते हैं, बाई सी रूट आते हैं। अब ये रोड खुल जाने से यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बढ़ जाएगा और यहाँ का लोकल लोगों का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से ये मोटिवेट करता है कि लोकल बच्चों को एंटरप्रेनर बनाए, नौकरी को ना ढूंढ के वो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, एंटरप्रेनर के लिए उनको जो भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, जो स्टार्टअप इंडिया हो या मुद्रा लोन हो, ये सब में सहायता प्रदान करते हैं गवर्नमेंट के जो भी स्कीम में। अगर किसी को भी इसमें कोई भी अगर असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का फंक्शन करता है फुल स्ट्रेंथ, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और 5 स्टाफ उसके साथ में काम कर रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड यूथ को अगर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना, कोई अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाना है, एम्प्लॉयर बनना है, तो कृपया हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको प्रमोट करेगा, उसमें सहायता प्रदान करेगा। मैं पी अब्दुल बशीर, प्रधान ग्राम पंचायत कन्यापुरम। आज बहुत खुशी का दिन है। आज जो है एक चुन्नामट्टा से लेकर नॉर्थ बे का रोड का इनाग्रेशन किया गया और अंडमान के लिए भी जो है बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ के टूरिज़्म के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी। हमारे मुख्य अतिथि चीफ सेक्रेटरी के हाथों से जो है आज इसका उद्घाटन किया गया। हमारे डीसी सर भी आए और सभी गणमान्य लोग, हमारे सी सर, एससी सर और हमारे पीडब्ल्यूडी के तमाम ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और यहाँ के जिला परिषद मरियम मैडम, प्रधान रशीदा मैडम। हमेशा जो है पंचायत का भी यही कोशिश रहता है कि कुछ अच्छा बने अपने पंचायत में, अपने लोगों के लिए। हमेशा ही पॉजिटिवली हम लोग सोचते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है अंडमान के लिए और यहाँ के जो है ऑप्टन पंचायत चुन्नामट्टा के लिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये जो बनने की वजह से जो है अंडमान के लोगों के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी जो है बहुत ही एक घूमने का बहुत अच्छा एक जगह बन चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बनने से जो है काफ़ी लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फ़ायदा हो। जैसे हमारे मुख्य अतिथि सर ने बताया कि जो एसएचजी ग्रुप है उनका जो है यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगेंगे, गेस्ट आएंगे, लोकल गेस्ट भी आएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे उनका जो है स्टॉल भी चलेंगे। मैं वी सुब्बाराज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रोड कंस्ट्रक्शन डिवीज़न, एपीडब्ल्यूडी वेम्बलीगंज। हमारे डिवीज़न द्वारा ये आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से इनागोरेट हुआ नया रोड, चुनाभट्टा राम मंदिर से लेकर नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट तक का जो रोड है, इसका आज उद्घाटन हुआ है। इस रोड का एक्चुअली ये रोड जो है हमारे जो है प्री 1986 एक रूरल रोड के नाते इसको बनाया गया था। वो 86 का जो हमारा एक बड़ा तूफान आया था अंडमान द्वीप समूह में, उसमें इस रोड का काफ़ी नुकसान पहुंचा और ये जो है काफ़ी जगह ये कट चुका था। तब से लेकर अब ये रोड जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, नॉर्थ बे के लिए कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं था। तो अभी नॉर्थ बे जो हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके लिए जो है हमारा आबड़ीन जेट्टी और हेडो वगैरह से आपको मैकेनाइज्ड वेसल्स, मोटर वेसल्स से ही टूरिस्ट को आना जाना हुआ करता था। तो इस नाते हम लोग जो है इसका एक पुनर्निर्माण के लिए हम लोग एपीडब्ल्यूडी द्वारा एक एस्टीमेट बनाया गया था नवंबर 2022 में। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 26 करोड़ 70 लाख के एस्टिमेटेड कॉस्ट था। तो इसको सैंक्शन मिला। सैंक्शन मिलते साथ हम तुरंत इसको काम कार्रवाई शुरू किए। तो इसमें हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काफ़ी हमारा सहयोग था। उन्होंने तुरंत हमारा ये जो पूरा 5.5 किलोमीटर का जो रास्ता है इसको डिमार्केट करके हम लोग को दिए थे। तो डिमार्केट करते साथ हमारा जो ये काम हुआ, तो इस काम में हमारा जो रोड बनी है ये हमारा 5.5 मीटर चौड़ा रोड है और इसमें जो है हमारा
काफ़ी हम डेवलपमेंटल काम किए हैं। हमारा जो रिटेनिंग वॉल्स काफ़ी जो है प्लांटेशन साइड में हमारा रिटेनिंग वॉल बना है, जहां हमारा मिट्टी का ढलान हो रहा था वहां में हम लोग रिटेनिंग वॉल किए हैं। और शीशोर में हम करीब 600 मीटर का सी वॉल बनाए हैं। और इसमें जो है हम थोड़ा सा सस्टेनेबल एक न्यू टेक्नोलॉजी गेबियन वॉल से भी हम लोग काफ़ी जगह जो है हम रिटेनिंग वॉल और सी प्रोटेक्शन वर्क्स किए हैं इस रोड पे। ये इस रोड पे टोटली हमारा जो है 27 कल्वर्ट्स हैं और करीब 1000 मीटर का रिटेनिंग वॉल बना हुआ है और करीब 500 मीटर का हमारा ड्रेन्स बने हुए हैं और सी वॉल हमारा 600 मीटर का सी वॉल बना हुआ है। इस रोड का अभी जो है कुल लागत, अब जो कंप्लीशन कॉस्ट है, ये अभी हमारा जो है करीब 27 करोड़ है। जो हमारा जो सैंक्शन अमाउंट था, जो हमारा स्वीकृत राशि था, उसी के अंदर हम ये रोड को कंप्लीट किए हैं। इसमें हमारा जो रोड का कंप्लीशन का पीरियड था 24 महीना, तो उस 24 महीने के बाद हमारा एक 7 महीना डिले हो गया है। ये डिले का कारण था, ये बीच में जो हमारा जो साइक्लोनिक वेदर था, मानसून था और 2-3 जगह पर अनफोर्सिन हेवी स्लाइडिंग हो चुका था मिट्टी का, तो वो हम मानसून समय में कर नहीं पाए। उसके लिए हमको फेयर सीज़न वेट करना पड़ा, तो इस वजह से एक 7 महीना का विलम्ब हुआ है इस रोड कंप्लीशन में। इस रोड कंप्लीशन का लिए हमारा जो टीम आरसीडी है, हमारे जो जितने इंजीनियर्स हैं, हमारा जो ये सब डिवीज़न बम्फ्लट सब डिवीज़न द्वारा इसको टेकअप किया था। इसका हमारा जो कनिष्ठ अभियंता है मुरुगेशन और हमारा सहायक अभियंता है श्री मणिमुत्तु, ये हमारा टीम वर्क था। ये टीम वर्क हमारा जो है कुल ये रोड को कंप्लीट किए और आज इसको तो पब्लिक के लिए आज समर्पित अर्पण हो गया है। इस मार्ग के पूरे आप समुद्र किनारे के ओर हम जो है एक 6 जगहों पर हम लोग एक थीम पार्क टाइप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा वॉकवे रहेगा, कुछ अम्यूज़मेंट आइटम बच्चों के लिए खेलने की जगह बनेगी, व्यू पॉइंट्स बनेंगे, सिट आउट्स बनेंगे और कुछ हमारा जो है कियोस्क बनेंगे जो ईटरीज वगैरह के लिए रहेगा। ये हम इस 5-5.5 किलोमीटर के रास्ते में 6 जगह आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके लिए हमारा जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यूनिट है हमारे एपीडब्ल्यूडी के, वो उन्हें द्वारा ड्राइंग सब फाइनलाइज कर दिए हैं और ये जो है अभी फाइनल स्टेज में है। जैसे ही इसका अप्रूवल हो जाती है तो हम इसका ये कार्य भी इसके साथ हम टेकअप करने वाले हैं। और इस रोड में हमारा जो है कुछ प्रोटेक्शंस, रोड प्रोटेक्शंस जो क्रॉस बैरियर के हैं, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम सेपरेट एस्टिमेट द्वारा अभी टेकअप करेंगे। ये अभी हमारा ये जो जैसे अभी हमारा एस्टिमेट सबमिट होंगे आने वाले 1-2 महीने में, तो जैसे इसका सैंक्शन हो जाएगा ये काम भी शुरू होगा। तो जब ये अम्यूज़मेंट पार्क और ये 6 जगह जो स्पॉट्स हमारा बनेंगे, जिसमें कुछ फुटपाथ रहेंगे, कुछ प्ले रहेगा, चिल्ड्रंस प्ले एरिया रहेगा, कुछ कियोस्क रहेंगे जो ईटरीज होगा और कुछ थीम पार्क टाइप बनाएंगे छोटे-छोटे। 6 जगह हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उसका जो है जो ड्राइंग जो है हमारा बन चुका है। जैसे ही इसका स्वीकृत हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, हम इसके ऊपर में भी काम शुरू करेंगे। जब इसके निर्माण पूरा हो जाएगा, ये एक बहुत सुंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा, जो हमारा एक दिन भर के लिए एक लोगों के लिए एक अच्छा एक समय बिताने के लिए ये जगह निर्मित हो जाएगा। इसका जो 5 साल का हमारा जो कुल जो मेंटेनेंस का लागत रहा, मेंटेनेंस का लागत भी हमारा ये सैंक्शन कॉस्ट पे है और इसका मेंटेनेंस जो है हमारा ये जो काम किए हैं मेसर्स CSC इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं के द्वारा इसका मेंटेन किया जाएगा। इस मेंटेनेंस पे हमारा जो है अगर साइक्लोनिक वेदर में कहीं हमारा कुछ पेड़ वगैरह गिर गया है या हमारा रोड को कुछ डैमेज हुआ है, तो हम ये इसको तुरंत करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। इसके लिए हमारा जो प्रोविज़न्स है और हमारा जो टीम RCD है, हमारे इंजीनियर्स हैं, इसमें लगे रहेंगे। और हम फर्दर और एक बात बता रहे हैं कि हम इसके बीच में 3 जगहों पे हम ये वॉशरूम रेस्टरूम फैसिलिटीज़ भी डेवलप कर रहे हैं और इस कियोस्क के सामने हम रेस्टरूम फैसिलिटीज़ भी करेंगे और ये रोड को हम साफ़ सुथरा रखने का भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे हमारा जो है प्रधानमंत्री हमेशा स्वच्छ भारत के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा हर बार यही कहते हैं कि हर जगह अपना स्वच्छ रखना। ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होने वाला है, तो इसीलिए मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि जब आएंगे तो यहाँ अपना खाने के सामान लेकर आएँ, तो ऐसे यूज़ एंड थ्रो वाला चीज़ ना लाएँ। जो
इधर ही फेंक कर जाए। अगर यूज़ थ्रो लेकर भी आए, यहाँ पंचायत द्वारा अभी जगह जगह पे कूड़ेदान रखने का व्यवस्था करने वाले हैं, तो उस कूड़ेदान को यूज़ करिए। आप अपना इतना सुंदर एक समुद्र किनारा आपको पिकनिक के लिए मिला है, उसको पोल्यूट मत करिए, उसको मत डालिएगा। ये थोड़ा सा हमारा आम पब्लिक से, हमारे लोगों से एक निवेदन रहेगा कि ये स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से इसको जो भी आप स्वच्छ रखना आपका भी जिम्मेदारी बनता है।